group of French society benefited from the revolution. कौन से ग्रुप को फायदा मिला था फ्रेंच रेवोल्यूशन से? यस, थर्ड स्टेट के लोगों को बेनिफिट मिला था. द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट which came to be known as new middle class. The wealthy people of the third estate, which also known as the new middle class of France, benefited from the revolution. उनको बेनिफिट मिला था फ्रांस के अंदर जो थर्ड एस्टेट के अमीर लोग थे या जिन्हें हम न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं. This group comprised of big businessmen, petty officers, lawyers, teachers, doctors and traders. और इस ग्रुप के अंदर आते थे lawyers, officers, teachers, doctors and traders. Previously, these people had to pay state tax and they did not enjoy equal status. पहले के टाइम पे इस ग्रुप के लोग जो हैं वो टैक्स पे करते थे और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अकॉर्डिंग उनको राइट्स नहीं थे. But after the revolution, they began to be treated equally. लेकिन revolution के बाद उनके साथ भी समान व्यवहार होने लगा. Clear लकी? With the abolition of feudal system of obligation and taxes, the clergy and the nobility came on the same level with the middle class. They were forced to give up their privileges. Their executive powers were also taken away from them. जैसे ही feudal system खत्म हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो जो सेकेंड स्टेट के लोग थे या जो लैंडलॉर्ड थे उनके राइट्स उनसे छीन लिए गए और अब नोबिलिटी और न्यू मिडिल क्लास वर ऑन द सेम लेवल. अब सारे सेम लेवल पे आ गए, किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं थे. They were forced to give up their privileges और फोर्स किया गया उन्हें कि वो अपने जो विशेष अधिकार हैं प्रिविलेजेस हैं उनको छोड़ दें. Their executive powers were also taken away और उनकी executive powers मतलब जो राज चलाने की उनकी ताकत थी, उनकी पावर थी, वो पावर भी उनसे छीन ली गई. The poorer section of the society, like a small peasants, landless laborers, servants, daily wage earners, would have been disappointed with the outcome of the revolution. लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, it was disappointed by मंचिका by because they don't get their political rights. They don't have right to vote. क्योंकि जो पुअर सेक्शन था उनकी वेजेस तो कम थी लेकिन उनको राइट भी नहीं मिले थे, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वो वोट डालने का अधिकार उनको नहीं मिला था. Describe the legacy of the French Revolution for the people of world during the 19th and 20th century. क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा 19वीं और 20वीं शताब्दी में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर के कारण दुनिया में क्या-क्या चेंजेस आए. We are living in a democratic country and democracy was started from the France after the French Revolution. We are also enjoying the right to freedom, right to speech, liberty, and all these are given by the French Revolution. So modern world is shaped by the French Revolution. जो अभी modern world है उसका निर्माण ही किसने किया है? The French Revolution proved to be the most important event in the history of the world. That is why we are studying this. इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. Otherwise किसी और कंट्री का इतिहास हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These ideas become an uprising force for the political movement in the world in 19th and 20th century. Ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy. Yes, French Revolution से ही हमें लिबर्टी का आइडिया मिला और डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों को अधिकार होने चाहिए अपना राजा चुनने के. ये सारी चीजें हमें मिली
जो कि अभी 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो दुनिया है उसमें अप्लाई हो रही है। अलग अलग कंट्रीज, जितने भी मोस्टली कंट्रीज 90% कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक एट प्रेजेंट टाइम। 90% देश जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के अधीन है या उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 10% अभी भी ऐसे हैं जो जहाँ पर मोनार्शियल रूल है, राजशाही है, आर्मी का रूल है या तालिबानी शासन है। तालिबानी शासन न्यूज देखते हैं, अफगानिस्तान का हाल देखते हैं, तो ना तो वो डेमोक्रेसी है, ना वो आर्मी है, ना वो डिक्टेटरशिप है, वो आतंकवाद है। The ideas of liberty, equality and fraternity spread from France to the rest of Europe where feudal system was finally abolished. आजादी, ये समानता का जो विचार था वो फ्रांस के बाद धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैला और एज ए रिजल्ट हमारे यहाँ से भी जो फ्यूडल सिस्टम था या सामंतवादी प्रथा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। Colonized people revolved on the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Colonized people. Who were colonized people? जो भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अधीन था उसे उस देश की कॉलोनी कहा जाता था। एज एन एग्जाम्पल, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, तो जो भी देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बनाए हुआ था, तो वो जो गुलाम देश था वो उस देश की कॉलोनी कहलाता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो दुनिया के वो सभी देश जहाँ पर जो कि कॉलोनीज थे, जो गुलाम थे, उन्होंने ये प्रयास किया कि हम मिलकर इकट्ठा होकर एफर्ट्स करें और अपनी गुलामी को आजादी में बदल दें। अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी देश, तो कोई भी जो शासक कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता। एग्जांपल देखिए, फ्रांस के अंदर सबसे कमजोर कौन थे? थर्ड स्टेट। और सबसे ताकतवर लुइस, बिकॉज ही वाज द रूलर। और रेवोल्यूशन किसने किया? थर्ड स्टेट। और पावर्स किसने एंजॉय की? उसके बाद पावर्स किसको मिली? के पास। और सब और राजा को आम लोग जो थे, कॉमन मैन जो था, उसने गद्दी से हटाया भी और मार भी दिया। यानी कि इट इज वी, हम हैं वो जिसके अंदर इतनी ताकत है कि अपने देश के सबसे ताकतवर आदमी को भी हम गद्दी से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ठीक से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगला इलेक्शन आएगा और प्रधानमंत्री साफ। तो ये विचार कहाँ से मिला? बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो गुलाम देश थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर वो मिलकर पूरा देश प्रयास करेगा तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। The idea of nationalism that emerged after the French Revolution started becoming mass movement all over the world. Now people began to question the absolute power. The idea of nationalism, राष्ट्रवाद की भावना अब बढ़ने लगी थी। फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद started becoming mass movement. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पहला ऐसा आंदोलन था जो मास मूवमेंट बना, यानी कि देश के सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर कोई आंदोलन कुछ लोग मिलकर करते हैं तो वो कामयाब नहीं होता जब तक कि वो मास मूवमेंट ना बने। और जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इट वाज मास मूवमेंट बिकॉज ऑल द पीपल, नॉट जस्ट थर्ड स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के भी, मीरा बाबू और अबे साइरस, they were not from the third state, they belonged to the first and second state and they involved in this revolution। और सबने मिलकर जब प्रयास किया तो उन्हें आजादी मिल गई। The impact of the French Revolution would be seen in India too. Tipu Sultan and Ram Mohan Rai were deeply influenced by the ideas of revolution. भारत जैसे देश में भी इस आजादी के विचार का बहुत ज्यादा सम्मान किया गया। इवन राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान जो है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए कि अगर सारा देश मिलकर प्रयास करेगा तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ देंगे। In the end, we can say that, और अंत में हम ये कह सकते हैं that after the French Revolution,
रेवोल्यूशन के बाद दुनिया के सभी देशों में लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए। Because of French Revolution, when women don't get their right to vote or political rights, they started their own movement. अपने rights के लिए उन्होंने movement आंदोलन करने शुरू कर दिए और after 200 years they got the rights. लगभग 200 साल संघर्ष किया महिलाओं ने और आखिर में उनको अधिकार मिल गए। Draw up a list of democratic rights. कौन-कौन से rights मिले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? राइट टू इक्वलिटी, अब देयर वाज नो, नाउ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज नो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऑल आर इक्वल, ऑल विल एंजॉय इक्वल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, सब चीज अधिकार उनको मिल गए। तो जब फ्रांस के अंदर ये अधिकार मिले तो पूरी दुनिया के लोगों में अपने अधिकारों के लिए जागरूकता आ गई कि हमें भी अधिकार चाहिए। एक कोट है, एक बहुत ही महान राजा ने कहा था, फ्रांस के राजा ने, व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप गॉट कफ, अगर फ्रांस चीखता है ना तो पूरे यूरोप का जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में अगर कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप के ऊपर आएगा और यूरोप के ऊपर आएगा तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे आएगा। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन कैसे अस्तित्व में आया, कैसे पावर में आया? नेपोलियन बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली और ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ सोल्जर। नेपोलियन की शुरुआत जो हुई थी वो एक सिपाही के रूप में हुई, उसने एक सिपाही के रूप में फ्रांस की सेना को ज्वाइन किया था। लेकिन फ्रांस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण रॉबर्सपियर अच्छे से शासन नहीं कर पाए, उनको हटा दिया गया, ही वाज militant। देन जो डायरेक्टरी बनी 5 लोगों की, वो अच्छे से शासन नहीं कर पाई, एग्जीक्यूटिव्स और आपस में लड़ते रहते थे, कन्वेंशन रूल भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और नेपोलियन ने इसका फायदा उठाकर 1804 में खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। The political instability of the directory paved the way for the rise of Napoleon. डायरेक्टरी रूल की फेलियर से नेपोलियन की शुरुआत हुई जर्नी की। नेपोलियन बोनापार्ट had achieved glorious victories in war. नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेना ने महान जीत हासिल की थी। आसपास के जितने भी देश थे नेपोलियन ने उन सबको जीत लिया था। वो एक महान योद्धा थे। This made France realize that only a military dictator like Napoleon would restore a stable government. और जब वो जीत रहे थे आसपास के देशों को तो लोगों ने रियलाइज किया यही वो है जो हमें एक अच्छा शासन दे सकता है। In 1804 he crowned himself. 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. जहाँ पर भी वो जीत रहे थे उन सभी देशों में उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा दिया था गद्दी पर। Kingdom where he placed members of his family, Napoleon viewed himself as a modernizer of Europe. नेपोलियन खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था। इट मींस वो ये मानता था कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो यूरोप को और बेहतर बनाए और उसके लिए उसने क्या किया, वेट और मेजरमेंट के तरीके जो है वो डिफाइन किए। पहले क्या होता था, वेट और मेजरमेंट की जो सिस्टम था वो गलत था। गलत बोले तो कि अलग अलग स्टेट में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से नापते थे। जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को मेजर करने के लिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन और अभी हम मीटर में मापते हैं। फ्रांस के अंदर एलए यूनिट की कपड़े को मापते हैं, ठीक है। और एलए जो है वो 11 स्टेट्स में से जब कोई व्यापारी माल बेचने के लिए निकलता है, फर्स्ट जगह से, फर्स्ट एरिया से शुरू होके जब वो 11th एरिया स्टेट के अंदर पहुंचता था तो 50% से ज्यादा तो टैक्स लगता था। कैसे? अगर वो निरंबर के अंदर है सो 1 एल इज इक्वल टू 56.8 मीटर, और अगर वो किसी नेक्स्ट स्टेट में पहुंच गया वहां पर 48.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और अगर वो थर्ड स्टेट के अंदर पहुंचा, तीसरे किसी और राज्य में पहुंच
तरीके 1 लीटर की बोतल आप इंडिया में कहीं से भी लेंगे, पानी 1 लीटर ही होगा, कम नहीं होगा 20 रुपए की आएगी या कितने की। लेकिन वहां पर अलग अलग जगह पर मेजरमेंट अलग अलग तरीके से होती थी, तो टैक्स कलेक्ट करने में मुश्किल आती थी। तो नेपोलियन ने रियलाइज किया कोई भी देश तब पावरफुल बन सकता है जब उसका व्यापार अच्छा होता है, क्योंकि पैसा कहाँ है, व्यापार में। और व्यापार को तब मजबूत बनाया जा सकता है जब व्यापारियों की सुनी जाए। और ट्रेडर्स की डिमांड थी मेजरमेंट मेथड शुड बी यूनिफाइड, यूनिफॉर्म मेथड होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए मेजर करने का। और नेपोलियन ने कहा ठीक है, एक ही मेजरमेंट और वेट यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, और उससे टैक्स कलेक्ट करने में भी आसानी होगी और मेजरमेंट करने में भी आसानी होगी, और चीजें भी क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। बट हिज राइज टू पावर, और उसी ने ही डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड किया वहां पर, बट हिज राइज टू पावर डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाए, क्योंकि एंटी कंट्रीज जो थे, जो उसके विरोधी देश थे, दुश्मन देश थे, वो सारे मिल गए नेपोलियन को हराने के लिए। और इन 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी युद्ध में हार हुई नेपोलियन के विरोधी से, और वो मारे। Would you agree with the view that the message of universal adult franchise was set with contradiction? ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, ब्रिटेन ये सब मिल गए थे युद्ध में, इकट्ठे होकर उन्होंने नेपोलियन का अटैक किया था, तभी वो हरा पाए थे। यस, कर लिया हमने कब्जे में, उन्होंने चारों तरफ अपनी आर्मी सेट कर दी थी। यू विल रीड मोर अबाउट इट इन योर 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। आगे की कहानी हमारी वहां आती है, जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो जब नेपोलियन हारा तो उसके बाद फ्रांस का क्या हुआ, ठीक है ना। तो सीजन 2 आएगा आपका नेक्स्ट क्लास में, तब आप समझेंगे कि नेपोलियन जब हारा या मारा गया तो उसके बाद describe the circumstances leading to the outbreak of revolution। कौन से कारण थे जिनकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ था। पहला, आप इसको कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट वर द मेजर कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, पहला, circumstances leading to outbreak of the revolution in France are Louis XVI of Bourbon family of king descended the throne of France। Louis XVI जो है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो फ्रांस के शासक बने, गद्दी पर बैठे। He ascended the new king, his accession the new king found an, जब वो गद्दी पर बैठे तो खजाना बिल्कुल खाली था। And he and his wife Mary Antoinette both were extravagant nature, फिजूल खर्ची को ज्यादा करते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, आए दिन पार्टीज होती रहती थी महल के अंदर, तो इसकी वजह से कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया था। Long years of war had drained the financial sources of France। लंबे समय तक जो युद्ध चला, फ्रांस ने जो हेल्प किया अमेरिका की, उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ गया। फ्रेंच सोसाइटी 18th century तक फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 estates, first, second and third, and the first and second estate were enjoying special privileges, powers and privileges, while all the taxes were paid by the third estate। यही तो सारे कॉजेज हैं ना रेवोल्यूशन के भी। About 60% of land was owned by first and second estate। The both nobles were the second state and clergy were the first state। So we can write down this also। The price of bread was increasing rapidly, और जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे। How the taxation policy was responsible? देखिए, basically there were two types of taxes were there, tips and tele। Tele was paid to the judge, and this was paid to the गवर्नमेंट। state। तो टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी नहीं थी, दो तरह के टैक्स थे,
was beard by only third estate. So majorly तो यही clauses हैं. अब उसको घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके हम कैसे भी लिखते हैं. Basically these 3 points are sufficient. ठीक है ना कि taxation policy was unequal. First and second estate were exempt from the taxes. There were basically 2 types of taxes, tithe and delay. Delay किसको पे किया जाता था, tax किसको पे किया जाता था, और only third estate bear the burden of taxes. ये taxation policy थी. It was responsible for the French Revolution. अगर इस तरह से होगा हमारे देश में भी, तो हमारे देश में भी जो थर्ड estate है या जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं क्या करेंगे? Explain the economic condition. Louis XVI was crowned as new king at the age of 16. 16 साल की उम्र में लुइसिया में गद्दी पर बैठे और खजाना बिल्कुल बांटा था. 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई मैरी एंटोनेट के साथ. और इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट फेवरेबल. तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट कि टैक्सेस जो है वो बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा था. टू लीवर से बढ़कर 1 लीवर से बढ़कर 2 लीवर हो गया था. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो लगातार खत्म हो गए. एक इकोनॉमिक subsistence crisis, not crisis, it's crisis. Subsistence crisis क्या था? At that time, it was the time between 1715 to 1789. 1715 से 1789 का जो बीच का टाइम पीरियड था, population increasing rapidly, population बहुत तेजी से बढ़ रही थी और it would become 23 to 28 million. 23 से 28 मिलियन हो चुकी थी. तो बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी. This huge population required more food grains. इस population के लिए ज्यादा अनाज की जरूरत थी. But because of drought and famine, अनाज की पैदावार उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही थी. So prices of bread was increasing rapidly. जो चीज कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ जाएंगे. कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा थी तो वो इंजेक्शन 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए का ब्लैक के अंदर. और कुछ जो महान व्यक्ति थे इंजेक्शन की खाली बोतल से पानी भरकर बेच रहे थे. 3 लाख रुपए ले लिए और पानी भरकर दे दिया. ऐसे ही जो गैस के सिलेंडर थे उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन की बजाय हार्मफुल गैसेस भरकर दे दी. और जो वो फायर एक्सटिंग्विश होते हैं आग बुझाने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर की बजाय कोटिंग करके उनकी ब्लैक कोटिंग करके वो बेच दी. यही ले जाओ. लोगों ने इस तरह से पैसा कमाया. मास्क जो यूज मास्क थे वो ये बेचने शुरू कर दिए. ये subsistence crisis is that condition in which a person is unable to fulfill his basic requirements. वो सिचुएशन जब एक पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट फूड शेल्टर को भी फुलफिल नहीं कर पाता है उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं. फ्रॉम 1715 टू 1789 ये वो टाइम पीरियड था जब फ्रांस की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी. इट बिकम 28 मिलियन फ्रॉम 23 28 से 23 मिलियन 23 से 28 मिलियन हो गई. वेजेस वर इंक्रीजिंग लेकिन इतने नहीं बढ़ रहे थे जितने की ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे. महिलाओं को ब्रेड लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था तब जाकर उन्हें ब्रेड अवेलेबल होती थी. वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं थी जैसे कि वो अपने घर के लोगों का पेट पाल सके. ब्रेड इज द स्टेपल डाइट ऑफ यूरोपियन पीपल. जैसे हम लोग चपाती खाते हैं वहां पर लोग चपाती नहीं खाते, ब्रेड खाते हैं. तो जब खाने के लिए अनाज ही नहीं है, आप कितना भी काम करें और अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस का नाम दिया गया. इट वाज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस लगातार जब बढ़ रहे थे लोग भूख से मर रहे थे. लुइस वाज एंजॉयिंग द पार्टीज. लुइस 16 ने वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे अपने महल में. Role of philosophers in the French Revolution of 1789. Philosophers ने क्या important role play किया था इस revolution में? देखिए, basically we read about 3 major philosophers: Jean-Jacques Rousseau, John Locke and Montesquieu.
मॉन्टेस्क्यू ने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ, और उन्होंने ये मेंशन किया देयर शुड बी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताएगा कि राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, राजा की पावर्स क्या होनी चाहिए और वो कैसे शासन चलाए। द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर एज फॉलोज। पहला, ड्यूरिंग 18th century फ्रांस हैड मेनी रेवोल्यूशनरी थिंकर्स। 18th century का वो टाइम पीरियड था जब फ्रांस के अंदर बहुत सारे विचारक थे, और among them were Voltaire, Rousseau, Montesquieu, and they wrote their revolutionary ideas helped the people to fight for their rights। ये जो फिलोसफर्स थे उन्होंने विचार दिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लड़ेंगे तभी हासिल करेंगे, अगर लड़ेंगे नहीं तो कोई हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेगा। They exposed the insufficiency of the monarch and government। उन्होंने बताया, लिखा बार बार और ये दर्शाया कि राजा जो है वो कैसे सरकार चलाने में सफिशिएंट नहीं है, वो योग्य राजा नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तो हमें उस राजा को भी बदल देना चाहिए। Voltaire's ideas encouraged people to fight against the privileges and finance of the church without guilt। Voltaire's ideas encouraged people। वॉल्टेयर ने जो विचार दिए उससे लोगों के अंदर ये भावना जागी कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। जॉन लॉक propounded the ideas reflecting dignity and absolute rights of the monarch। जॉन लॉक ने बताया कि there should be 3 level of government, और राजा जो है उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको बदलने का अधिकार है। There should be legislative, executive and judiciary। लेजिस्लेटिव कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव पालन करवाए, और जुडिशरी ये देखे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Montesquieu believed that all the powers should not be concentrated in one person's hand। Montesquieu ने कहा सारी पावर्स एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो डिक्टेटर बन जाता है। Powers should be divided। Rousseau asserted the doctrine of democracy। Rousseau ने कहा there should be democracy, we must choose our ruler by the democratic way। हम वोट डालें और अपने राजा का चुनाव करें। Popular sovereignty, he believed that the government should be based on the consent of the governed। He wrote a book named Social Contract। उसका विश्वास था कि सरकार जो है वो डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए, हम वोट डालें और अपनी सरकार को खुद चुनें। Thus, the idea of the philosophers were a direct attack on privileges and feudal rights, which protected the upper classes। Idea of philosophers का जो आइडिया था वो डायरेक्टली आघात था, चोट पहुंचा रहा था फर्स्ट और सेकंड स्टेट के स्पेशल राइट्स को, फ्यूडल्स के राइट्स को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही चीज नहीं है, और देयर शुड बी अ चेंज होना चाहिए, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम